Hello students, Standard 12, Subject Economics, Chapter 2, Indicators of Growth and Development, Session 7. Topic of the session, Indicators of Economic Development. Number 4, Human Development Index. Till now, in the previous sessions, we have discussed about different indicators of economic development, starting from national income, per capita income, improvement in physical quality and physical quality life index. Now today in this particular session we will discuss about the fourth and the last indicator of economic development, and that is human development index. Now first of all, let's understand what is human development index. The most recent indicator of development is the Human Development Index, which is now preferred by majority nations of the world in order to check whether the economic development is taking place in the country or not. तो आज पूरी दुनिया में जो एक रिसेंटली इंडिकेटर का इस्तेमाल हो रहा है इन ऑर्डर टू चेक द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, वो है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. United Nations Development Program, that is UNDP, abbreviation or a short form can be asked in exam, presented the Human Development Report in 1980. In that report, Human Development Index was presented as a measurement of development. First time UNDP presented this report in 1980 और उस रिपोर्ट में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को एक डेवलपमेंट मेजरमेंट के फॉर्म में प्रेजेंट किया गया. Along with the economic aspects of measurement, Human Development Index emphasized more on non-economic aspects also. कि majority of the indicator what we discuss, especially national income, per capita income, वो economic aspects के एंगल से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देकर डेवलपमेंट को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं. बट इन फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स ऑल्सो एंड हियर टू द इम्पोर्टेंस इज ऑल्सो गिवन टू द सोशल एस्पेक्ट अलॉन्ग विद द इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स. Indian economists also contributed in evolving the HDI on the basis of evaluation made regarding the development efforts in the different countries. So how the different nations of the world are giving importance to the development process in their own country in reference to HDI, कि जैसे दुनिया के दूसरे देश HDI को कंसिडर करके अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं, सेम एफर्ट्स आज इंडियन इकोनॉमिस्ट ने भी सजेस्ट किए और हमारी गवर्नमेंट भी कर रही है. Improvement were introduced in the year 2010 in the minimum and maximum values which were used to measure the HDI since the 1990. कि 1919 से HDI को न्यूमेरिकल फिगर में एक्सप्रेस करने के लिए जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू का लिमिट था उसको 2010 में इम्प्रूव किया गया, री एनहांस किया गया. स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने PQLI पढ़ा था तब भी वैल्यू का एक लिमिट था 0 to 100, तो वैसे ही यहाँ पे भी न्यूमेरिकल जो लिमिट्स थी उस लिमिट्स को 2010 में चेंज किया गया और इम्प्रूव किया गया. Now students, let's discuss the main determinants of Human Development Index. Determinants, factors also can be
called. So in exam you may get a question that explain the determinants or factors है ना influencing human development index. So let's see all the factors one by one. The three factors are considered while preparing HDI to make it simple and easy. कि जब HDI को प्रिपेयर किया जाता है, जब ये रिपोर्ट या इंडेक्स फाइंड आउट किया जाता है, तीन फैक्टर्स को कंसिडर किया जाता है in order to make the process and calculations simple and very easy. Instead of absolute values, average values of all three are taken. And it includes the three factors or three determinants. First one, life expectancy. Second one, educational achievement, knowledge data depicts social achievements. And third, income data that depicts the standard of living, which in turn shows the economic achievement. So main three factors कौन से हुए? Life expectancy, second educational achievement or knowledge, and third income data. So these are the three main indicators or determinants or factors on which human development index is dependent. So let's study them in detail. The first one, life expectancy. Students, at the time of discussing the PQLI, तब भी हमने ये factors को देखा था. It is more or less same here also. What is the expected number of years a person will live at the time of birth of the population of a country determines the value. कि person का जब birth होता है तब जो expected number of years उसकी life के बारे में एक्सपेक्ट किए जाते हैं, दैट फिगर इज कंसिडर्ड एज अ लाइफ एक्सपेक्टेंसी. इफ इट इज लेस देन 50 years, as I told you at the time of PQLI also, in India the life expectancy is around 68 years. Okay, average life expectancy I am saying. If it is less than 50, अगर आप HDI के थ्रू कैलकुलेशंस कर रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को चेक कर रहे हैं, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी शुड नॉट बी लेस देन 50. अगर उससे कम है, सो इट विल गिव एन आइडिया दैट द कंट्रीज इज डेफिशिएंट इन हेल्थ सर्विसेज. कि कंट्री में रह रहे लोग उनकी हेल्थ सर्विसेज प्रॉपर नहीं है, इसी वजह से वहाँ पे लो एज में डेथ हो रही है. हायर द लाइफ एक्सपेक्टेंसी बेटर द HDI. अगर वो 50 से जितना ज़्यादा ऊपर आएगा, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 है ना, इतना ही, बहुत ज़्यादा नहीं. इट विल नॉट गो, है ना, इट विल नॉट बी कंटिन्यूड, वो चलते ही नहीं रहेगा. लास्ट टाइम PQLI में भी बताया था मैंने स्टूडेंट्स आपको कि ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी है. तो हमारी लाइफ क्यों, है ना, हमारी लाइफ का जो एक्सपेक्टेंसी है उसका एक लिमिट है, कॉन्स्टेंटली वो बढ़ नहीं सकता. पर फिर भी जितना मिनिमम लेवल है यानी 50 इयर्स का है, उससे जितना ऊपर जाएगा लाइफ एक्सपेक्टेंसी उतना डेवलपमेंट बेटर होगा. सेकेंड पॉइंट इज नॉलेज, लिटरेसी और एजुकेशनल अचीवमेंट. टू नो द क्वांटम ऑफ नॉलेज, एडल्ट लिटरेसी इन परसेंटेज इज कैलकुलेटेड. मीन्स दोज हु आर एडल्ट, है ना, their literacy level will be taken into consideration. People in the age group of 15 years and above are included. कि यहाँ पे एडल्ट कैटेगरी में किनको कंसिडर करने वाले हैं? पीपल फ्रॉम द 15 years and above. Two aspects are there. It includes first number of years of schooling. कि 15 years के ऊपर के जो भी लोग हैं उनका नंबर ऑफ ईयर कितना स्कूल में स्पेंड हुआ है, यानी स्टडी में कितना गया है वो. एंड बी, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, और कितना एक्सपेक्ट किया गया था. द गैप बिटवीन द एक्सपेक्टेड एंड द एक्चुअल नंबर ऑफ द ईयर्स ऑफ स्कूलिंग इज टेकन टू डिराइव द वैल्यूज. जैसे कि मान लो एज अ स्टूडेंट आपका मिनिमम बेसिक बैचलर कंप्लीट करने के लिए 21 ईयर्स तक स्टडी करना ज़रूरी है. सो इन योर केस
The second B, expected number of year of schooling will be 21. बट कुछ बच्चों ने 10th के बाद पढ़ाई छोड़ दी, कुछ शायद 12th के बाद छोड़ देंगे, आप में से कोई भी शायद ऐसा भी करे, करना नहीं। कुछ लोगों ने कॉलेज का 1 ईयर करके ड्रॉप कर दिया, 2 ईयर करके एटी केटी के चक्कर में ड्रॉप करना पड़ा, है ना। सो जो एक्चुअल नंबर ऑफ ईयर्स था वो तो एक्सपेक्टेड था 21, पर कुछ लोगों ने 12th के बाद छोड़ दिया, मतलब 17 ईयर्स के बाद उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। तो 17 एंड 21 कितना गैप आया, 4 ईयर का, ठीक है। सो दैट गैप विल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन टू डिराइव द वैल्यू ऑफ नॉलेज कैटेगरी। The third one is good standard of living. What kind of actual standard of living you are enjoying? What is the quality of life you are living? That is there in a third determinant. Standard of living refers to availability of pure drinking water, medical services, good sanitation facilities, infant mortality rate, percentage of undernourished and malnourished children, per capita calorie availability per day, mortality rate of infant below 5 years of age, protein and fat availability, etc. Right? So these all are taken into consideration which depends on income. कि आपका जितना इनकम अच्छा होगा उतनी ये सब फैसिलिटी आप बेटर एंजॉय कर पाओगे। अगर इनकम कम है तो ये सब प्रॉपर सर्विसेज आप एंजॉय नहीं कर पाओगे और आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लो रह जाएगा। Income index is that in which the per capita gross national income is measured on the basis of purchasing power parity or a theory। कि आपका purchasing power कितना है उस बेसिस पे भी income index फाइंड किया जा सकता है। Now the next question, important aspect of HDI. Again a question for 2 to 3 mark. First, the maximum value of HDI is 1. Maximum is 1. PQLI में क्या था, 0 to 100 और वहाँ पे maximum 100 था। So it can be asked in MCQ type somewhere. Maximum value of HDI is 1 which is based on 3 standard जो अभी हमने देखे। Second, the value of HDI ranges from 0 to 1, यानी यहाँ पे वैल्यू जो भी मिलेगी है ना 3 फैक्टर के बेसिस पे जो HDI फाइंड आउट होगा लास्ट में उसका वैल्यू होगा 0 to 1. That countries whose HDI is closer to 1 is considered more developed, like 0.90, 0.85 है ना, पॉइंट मतलब 0.85, 0.90, 0.75 वो बेटर है। इट गेट्स हायर रैंकिंग इन HDI और HDI के टेबल में उनको अपर रैंक मिलेगा। द कंट्री हुज HDI वैल्यू इज फार्दर फ्रॉम 1, 1 से फार्दर मीन्स दूर है, लाइक 0.1, 0.3, 0.4 है ना, they are considered as less developed and they will get lower ranking in HDI. According to 2014 data, Norway ranked first number with the HDI 0.944, while India with the 0.609 ranked 130th out of 188 countries। कि नॉर्वे ने 2014 की रिपोर्ट के हिसाब से फर्स्ट रैंक अचीव किया और उनके HDI नंबर्स थे 0.944, जबकि उसी रिपोर्ट के वक्त इंडिया का पोजीशन था 130th रैंक। कितने कंट्री में से, 188 कंट्री में से, और इंडिया का HDI था 0.609। ये जो न्यूमेरिकल फिगर्स है ये आपके MCQ में भी या 1 मार्क क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। लेट्स सी दैट रिपोर्ट है ना, एंड देन डिफरेंट कंट्रीज इंडिकेटर्स एंड डिटर्मिनेंट वैल्यूज। सोर्स HDR report of 2015 and economic survey of 2015-16. You can see the countries Norway, America, China, India, Pakistan, Niger, they are there. The value of their HDI in 2014 were as mentioned, जैसे बताया कि नॉर्वे फर्स्ट है
with the value of 0.944. इंडिया इज देयर ऑन 130th पोजीशन और 188 कंट्री की लिस्ट में सबसे लास्ट में कौन है? नाइजर विद द रैंक ऑफ 188 एंड HDI वैल्यू 0.348. According to HDI of 2015, it has been included 188 countries which are classified into 4 category. कि HDI रैंक जो आता है उसके थ्रू कंट्रीज को डिफरेंट 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. एंड दोज कैटेगरीज है ना आर: फर्स्ट, कंट्री हैविंग द हाईएस्ट और मैक्सिमम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. In that, the average value of human development of 1st to 49th country is 0.890. कि 1 to 49 तक के जो कंट्रीज होगी उनको फर्स्ट कैटेगरी में लिया जाएगा, जो है मैक्सिमम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाली. और वहाँ पे उनका HDI वैल्यू कितना हो सकता है? मैक्सिमम 0.890. सेकेंड कैटेगरी, इट इंक्लूड्स द कंट्री हैविंग द हाई ह्यूमन डेवलपमेंट. पहला था मैक्सिमम ह्यूमन डेवलपमेंट, नाउ हाई ह्यूमन डेवलपमेंट. उसमें कंट्री आएगी 50 से लेके 105th रैंक तक की और उनका मैक्सिमम वैल्यू होगा 0.725. थर्ड, मॉडरेट ह्यूमन डेवलपमेंट, कि जिन कंट्रियों का वैल्यू या रैंक 106 से लेके 143 के बीच में था, उन कंट्रीज के डेवलपमेंट को कैटेगराइज किया गया इन द थर्ड कैटेगरी, दैट इज मॉडरेट, यानी मीडियम डेवलपमेंट है. बहुत हाई भी नहीं है, मैक्सिमम भी नहीं है, बट एट द सेम टाइम बहुत लो भी नहीं है. इन दैट द वैल्यू ऑफ द HDI इज 0.614. And the fourth one is Niger in the continent of Africa with the 0.348 comes at the last in the order of HDI of 2015. कि ये जो पूरा टेबल है उसमें नाइजर कौन से पोजीशन पे है? सबसे लास्ट पोजीशन पर है, जिसमें उनका रैंक था 188. और जो सबसे लोअर कैटेगरी है, जो फोर्थ पॉइंट है, वो है कंट्रीज विद द लो ह्यूमन डेवलपमेंट, जिसमें 144 से लेकर 188 तक की कंट्रीज को कंसिडर किया जाता है और वहाँ पे HDI का वैल्यू है 0.493. इट इज़ गिवन इन योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो 25 नंबर पेज, पॉइंट नंबर 4. नाउ लेट्स मूव ऑन. इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है? HDI इज कंप्लीट एज not only takes economic factor but also includes the social welfare by giving importance to education and health. कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर पे बेस्ड नहीं है, ये सोशल वेलफेयर को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देता है, जो हमें उसके दो मेन डिटर्मिनेंट्स, दैट इज एजुकेशन एंड हेल्थ फैक्टर में दिखाई देता है. HDI indicates the policy makers that the economic development is only a tool, but the ultimate objective is only human welfare. कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो कंसिडर हो रहा है वो एक टूल है खाली, कि कंट्री में इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है नहीं, अगर नहीं हो रहा तो कौन सी प्लानिंग करनी है इम्प्रूवमेंट के लिए, वो सब कंसिडर होता है. बट एट द एंड the main objective behind each and every efforts is the social welfare and the human welfare of the country. True progress is equal to economic progress plus social progress. कि रियल सेंस में एक एक्चुअल डेवलपमेंट या एक्चुअल प्रोग्रेस किसे कहा जाएगा? कि जब आपके कंट्री का फाइनेंशियल पोजीशन भी इंप्रूव हो रहा है, एट द सेम टाइम द सोसाइटी एंड द पीपल who are living in a middle class, lower class, below poverty line, है ना, facing the problem of poverty, unemployment, उनकी लाइफ में भी बहुत पॉजिटिव और बेटर इंप्रूवमेंट आ रहे हैं. दैट इज मोर important and that is only considered as a true progress or a true development. HDI is functional. That means a rise in HDI ranking indicates that health and education have improved in the
कंट्री कि जितना HDI पॉजिटिव और 1 से नियर बाय जाते जाएगा वो ये इंडिकेट करेगा कि कंट्री में एजुकेशनल लेवल, हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड सर्विसेज वो बेटर टू बेटर हो रहे हैं. डेवलपिंग कंट्रीज गेट एन आइडिया एज टू वेयर देर इज अ स्कोप फॉर डेवलपमेंट कि जैसे कि हमें ये इंडेक्स के थ्रू ये पता चलता है कि येट वी आर लेकिंग, येट वी आर इन द ग्रुप ऑफ मॉडरेट ह्यूमन डेवलपमेंट, और दूसरे कंट्री जो मैक्सिमम ह्यूमन डेवलपमेंट में है, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट में है, उनकी इकोनॉमी से, है ना, एग्जाम्पल्स लेकर उनकी इकोनॉमी से, इकोनॉमी को प्रिफर करके डेवलपिंग इकोनॉमी अपने कंट्री में डेवलपमेंट के रिलेटेड प्लान एंड पॉलिसीज बना सकते हैं, इन विच डायरेक्शन शुड बी द गवर्नमेंट वर्क बाय लुकिंग टू द HDI. HDI इज प्रोग्रेसिव इन इट्स अप्रोच कि वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ाने में ही इंपॉर्टेंस और स्ट्रेस देता है. Now, as like all the indicators, the HDI is also having few limitations. Question for 2 mark in exam. Only 3 social indicators are included in HDI, which is less. क्योंकि यहाँ पे सोशल वेलफेयर के लिए बहुत से एस्पेक्ट्स है, बहुत से फैक्टर्स है जिनको इंक्लूड करना ज़रूरी है, बट एज द सिस्टम इज रिस्ट्रिक्टेड, हियर ओनली 3 indicators are taken. All 3 indicators are given equal weightage, but in reality, in different situations, different indicators become important. यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम है कि तीनों इंडिकेटर्स को लाइक PQLI एक जैसा ही वेटेज दिया गया है, राइट, बट अगेन different indicators are important at a different time, at a different situation, in different economy. Human Development Index is not an absolute expression, it is an average. It only shows the relative progress as it compares one country with the another. कि ये कोई एब्सोल्यूट फिगर नहीं है, ये सिर्फ एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ जो एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और इनकम इंडेक्स है या तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसके थ्रू एक कंपैरिजन हो रहा है और उस कंपैरिजन को उन्होंने बेसिक न्यूमेरिकल फिगर्स में एक्सप्लेन किया है. सो इट डज नॉट गिव द एग्जैक्ट आइडिया अबाउट द रियल डेवलपमेंट और प्रोग्रेस ऑफ अ कंट्री. अदर देन दिस वी ऑल्सो हैव फ्यू डेवलपमेंट इंडेक्स विच आर निग्लेक्टेड, है ना, या तो ऐसा भी कह सकते हैं कि जिनको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैलकुलेट करने के टाइम पे इंक्लूड कर सकते हैं, एंड दोज आर GDI, that is Gender Development Index, male and female. TAI, Technological Achievement Index, how much country is improving in the field of technological developments, that is TIE. HPI, Human Poverty Index, कि कितना पॉवर्टी धीरे धीरे कम हो रहा है, कितने लोग जो बिलो पॉवर्टी लाइन में थे अब उनकी लाइफ में इंप्रूवमेंट आ गया, दैट इंडेक्स ऑल्सो कैन बी इंक्लूडेड. HCI, Human Consumer Index, and such more. So this was all about your chapter number 2. Keep on studying, keep on revising. If you have any doubt, you can contact to me at any point of time. Goodbye. Take care.